So now we have already understood that how the British, rise to supremacy, firstly by eliminating the major European rival, that was France. ठीक है, वो तो Carnatic Wars में हो गया. Now what was the challenge in front of the British? That whatever regional powers were there, एक एक करके उनको eliminate करना. What they started to do, they started to have the supremacy from the eastern region, the Bengal region. And that is why we will study about the two major battles which are the landmarks actually. यहाँ से the course of history is actually changing. ठीक है, अभी तक तो जो भी था that was about competition, rivalry, elimination and establishing the stronghold. अब वो establishing the stronghold के बाद how they sustained over this much of a long period is what we have to discover. So please do watch the earlier videos because history में आप random कोई भी video उठा के if you are trying to see you will not get the essence of the video. And also please do like, comment, share and subscribe. Okay, so now the British started to have control or the conquest over the Bengal region. Now what happened? So since 17th century, again we'll quickly just revise it as a background because it's very important to understand what happened in those battles. So since 17th century, we already know that the European powers were attracted by the whole of India firstly, but very importantly attracted by the Bengal region because of the rich resources that was present in the region. And how is it evident? British ने तो हमको बोला नहीं कि हम बड़े interested हैं बंगाल में. So how what is evident? Evident because for example 1651 में they established their first English factory in Hooghly region. ठीक है. Also they got the privilege of free trading in Bengal, so they were looking for it. ये लोग कोशिश करते थे जो मुगल एम्पायर से उनसे बात करके free trading करवाने की. 1698 में they acquired the ज़मींदारी of several villages. ज़मींदारी क्या था? Basically वो right over that particular land and to collect the revenue from there. और बाद में जो several villages हैं they got combined and they got formed into the city of Calcutta, which we now know as Kolkata. 1717 में we know about फारूक सियार, if you remember, later मुगल्स टाइम पे सब पढ़ाया है, gave the trading privilege. ठीक है, वो confirmation मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को. By early 18th century there were exports from exports मतलब सामान बाहर जाना, things were going out. So exports from Bengal consisted about 60% of English East India Company's imports from Asia. Now understand this. So English East India Company was interested in trading from the eastern region from Asia. एंड वॉट एवर इम्पोर्ट वॉज हैपनिंग, मतलब वो जो भी खरीद रहे थे एशिया से, जो भी सामान इनके पास जा रहा था, सो वॉट एवर इम्पोर्ट दे वर गेटिंग फ्रॉम एशिया, 60% ऑफ दैट वॉज कमिंग फ्रॉम बंगाल रीजन ऑफ इंडिया. जस्ट इमेजिन द वास्ट डिपेंडेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन. एंड वॉट काइंड ऑफ आइटम्स वर एक्सपोर्टेड लाइक कॉटन, सिल्क, textiles, handicrafts, rice, indigo, pepper, etc. Now this is important because such kind of questions are asked in the paper. I'll show you in the PYQ also. So now when this happened, what was the case? Murshid Quli Khan, who was the first Nawab of Bengal, we have seen in the regional states emergence, he was there. Then 1740 Alivardi Khan took over, then Sirajud-Dowla took over. ये तो हमने देखा हुआ बंगाल के केस में. Why it is important to know this? Because they had clashes with the company. Because all these Nawabs were, like they were very, very, you would say very effective and efficient ruler. And despite of having ठीक है इन्होंने regional kingdom बनाया, they could not as such replace the Mughal empire. That is a different thing. But in their own region they were very efficient ruler and they were not ready to compromise easily that any foreign power will come and take over their region. Because if Bengal has rich resources, who has the right to gain from that? The people there and the rajas there. Why will they give this power to the other European power that you come and take away our wealth from Bengal? ये तो कोई नहीं पसंद करेगा. So this was the case. Now let's understand what happened in the case of Battle of Plassey. ठीक है, 23rd of June 1757 की कहानी है Battle of Plassey की. So firstly तो we will have to understand that what was happening in the background. There was conflict between the Nawab of Bengal and East India Company. किस चीज़ को लेके? Why was there a conflict? Firstly this 1717 फरमान जो हमने देखा भाई फारूक सियार ना, फारूक सियार वॉज अ मुगल एम्पर. उसके अंडर में पूरा का पूरा जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन्स थे मुगल एम्पायर के अंडर में. बट द अदर पीपल हैड द अदर नवाब्स और लेट्स से द इम्पॉर्टेंट नोबल्स हैड स्टार्टेड टू कार्व देयर ओन रीजनल स्टेट्स. सो इफ़ यू रिमेंबर इन द सक्सेसर स्टेट्स हमने देखा था लाइक हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, that they had not completely overtaken the Mughal authority, but they were in most of the things having autonomy, but still for a couple of things they were dependent on the Mughal emperor. So they directly as such इन्होंने कोई revolt नहीं किया था. So they were still having the slight control of the Mughal emperor.
अब यहाँ पे क्या हुआ, फारूक सियार गेव द ट्रेडिंग प्रिविलेज, बिना बंगाल के राजा से कोई सलाह मशवरा किए या विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट। तो एक ये मेजर प्रॉब्लम था, बिकॉज फॉर द नवाब्स ऑफ बंगाल दैट वाज वेरी मच अ लॉस ऑफ रेवेन्यू। बंगाल सरकार को तो बहुत लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था। सेकेंडली व्हाट वाज हैपनिंग, द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट्स, मतलब इनके जो लोग थे सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे वर मिसयूजिंग द दस्तक्स। व्हाट वाज दस्तक? दस्तक वाज द passes, you would say. So there was a need for the company to take these passes and then go for the trading, you know, kind of permission if you say so. But ये servants उन दस्तक passes का misuse करते थे to evade the tax on the private trade because they were indulged in the private trade also. जैसे हर जगह corruption होता है, so they were indulged in the private trade also. अब उस पर कोई tax ना लगे, उस वजह से वो सरकारी passes को use कर लेते थे, which was actually allotted in the name of the company. But for the private trade, these servants were also using. So that resulted in more and more drain of wealth from Bengal. So that was one reason of the conflict between Nawab and the company. Secondly, there was this person Krishna Das. Now who was Krishna Das? Krishna Das was son of a very another important person in the Bengal region, Raj Bala. अभी इतना ज़्यादा हमें डिटेल नहीं जानना है, आगे जैसे जैसे आएगी चीज़ें हम जानेंगे. अभी just remember, so son of a very prominent person was given shelter by the East India Company. Now why was this a problem for the Nawab? Because this person Krishna Das had fled with immense treasures. ये सरकारी खजाना से बहुत कुछ लेके भाग गया था against the will of the Nawab. और ऐसे किसी धोखेबाज इंसान को ईस्ट इंडिया कंपनी ने शेल्टर दे दिया, शरण में रख लिया. So of course the Nawab would not be happy with the company. Then East India Company gave support to the claims of Ghazeti Begum. मतलब जो घसेटी बेगम थी, who was अलीवर्दी खान्स डॉटर and wanted to contend for the throne. वो भी एक कंटेंडर थी आगे राजगद्दी के लिए. लेकिन जो नवाब थे वो तो चाहेंगे नहीं कि घसेटी बेगम बने, क्योंकि मेल फीमेल वाली जो है वो चीज़ हो जाती है. बट ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड हर क्लेम्स कि हाँ शी शुड बी गिवन दैट थ्रोन. तो अगेन द नवाब वॉज भाई वेरी एंग्री कि आप होते कौन हो इस बीच में बोलने वाले. सो अगेन देयर वॉज इशू ऑफ क्लैश. देन द फोर्ट विलियम, जो आपने कैलकाटा मैप में आई हैव शोन यू, द फोर्ट विलियम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको फोर्टिफाई कर लिया, यानी उस पूरे रीजन को अपने कब्जे में करने की कोशिश की किला बना करके. तो वो स्ट्रेंथन हो गया. अब यहाँ पे क्या है, सिराजुद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल वार्नड द ईस्ट इंडिया कंपनी कि ये सब मत करो, डोंट फोर्टिफाई. आपको ट्रेड करना, आप ट्रेड कर रहे हो, जस्ट डू इट लाइक दैट, बट डोंट फोर्टिफाई दिस रीजन. लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देयर वाज नो इफेक्ट. एंड दिस मेजर थिंग बिकेम द इमीडिएट कॉज for this to happen, because Nawab was in any way not ready to accept that some other European power will come and fortify a region, and that to Fort William region, जो कैलकाटा के पास सबसे important place था ट्रेडिंग के लिए. तो आप उसको अपने कब्जे में कैसे कर सकते हो, ठीक है. सो देन व्हाट हैपेंड, आया जून का टाइम 1756. अभी हमने देखा कि 23 जून वॉज द मेन बैटल जिस दिन हुआ, लेकिन उसके पहले जो बिल्डअप हो रही थी चीज़ें, उस दिन क्या हुआ देखो, जून 1750. यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, ठीक है, ये सारा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है ये डेट. तो एक साल पहले जून 56 में क्या हो रहा था, सिराज सराउंडेड दैट फोर्ट विलियम, जो इन्होंने अपने कब्जे में करने की कोशिश की. तो सिराज सराउंडेड, एंड सराउंड करके क्या हुआ, तो वहाँ जो कुछ इंग्लिश मैन थे, बिकॉज दे वर ऑलरेडी ट्राइंग टू फोर्टिफाई इट अर्लियर. So some of the Englishmen who were already present in the Fort William, some of them could escape. वो तो निकल गए, भाग गए. And then they tried to take help from the Madras region कि प्लीज़ हमें बचा लो. 20 जून 1756 को क्या हुआ, सिराज रीनेम्ड कैलकाटा, जो कैलकाटा का रीजन था उसको सिराजुद्दौला ने रीनेम कर दिया एज अलीनगर, एंड सेड दैट देयर वाज दिस पर्सन मानिक चंद, वो कंट्रोल में रखेगा अलीनगर को, यू नो इट विल बी अंडर द चार्ज ऑफ दिस पर्सन. And then Siraj himself returned to Murshidabad. These all are places in the Bengal region. अब क्या हुआ, some Englishmen could escape from Fort William, but there were many who could not escape, and they were present inside that Fort William only. So those left people who were left out, they were imprisoned in the small room of the fort. एक छोटा सा कमरा था, वहाँ सबको बंदी बना दिया. और ये कौन लोग थे, ये ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, इनको बंदी बना लिया ना. उस छोटे से रूम में देयर वाज सो मच ऑफ हीट, एक तो जून का टाइम है बंगाल रीजन में, ठीक है, सो मच ऑफ हीट ऑल्सो, एंड देन स्मॉल प्लेस, सो देयर वाज नो एज सच वेंटिलेशन और समथिंग, एंड पीपल जस्ट डाइड लाइक एनीथिंग, ठीक. इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है.
And Siraj-ud-Dawla, because it was all done on his order, was held directly responsible for all of these deaths of people. कि इतनी गर्मी में उनको एक जगह छोटे से जगह में डाल दिया and they could not escape and they just died. तो अब आगे क्या हुआ? February 1757, the Nawab signed Treaty of Alinagar with the English. क्यों? अब यहाँ पे क्या बात हो गया कि अब जब इतना इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया तो सिचुएशंस ऑफ कोर्स वर्सेंड एंड द नवाब हैड नो चॉइस कि बट अब तो ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, इंग्लिश के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो नवाब ने कहा कि ठीक है, आप इंग्लिश जो पीपल हैं वी विल रीस्टोर देयर ट्रेडिंग प्रिविलेज, और उनको फोर्टिफाई करने के लिए कैलकटा का परमिशन, कंपेंसेशन और ये सब देने की बात की. इंग्लिश हैड स्टार्टेड टू गेन प्रोमिनेंस नाउ. And Robert Clive, if you remember about the clerk we talked about in the Carnatic War, regained Calcutta, उसके कंट्रोल में आ गया कैलकटा. Now that English saw that ये जो नवाब है ये तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, so they decided that we will now replace this नवाब with another person who they thought would be their person, you know, अपना एक आप बोलो nominated person बना के. Who was मीर जाफ़र? Who was मीर जाफ़र अभी हम आगे देखेंगे. बट दे डिसाइडेड टू रिप्लेस दिस नवाब विथ मीर जाफ़र. तो उसको लालच देना शुरू किया, इंटरनल वीकनेस क्रिएट करना द ब्रिटिश स्टार्टेड. वॉट दे डिड, तो क्लाइव, नाउ दिस पर्सन एज आई हैव टोल्ड यू वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैड सो मच ऑफ दिमाग ऑल्सो. सो वॉट ही डिड, रॉबर्ट क्लाइव ऑर्गेनाइज्ड अ वेब ऑफ इंट्रीग, मतलब एक धोखाधड़ी का जाल बुनना शुरू कर दिया विथ लीडर्स इन द नवाब्स कोर्ट ओनली. नवाब के ही कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ मिलके एक धोखाधड़ी का जाल बुनना शुरू कर दिया. इट वॉज अबाउट ऑल इंटरनल कॉन्स्पिरेसी कि आप हमारे फेवर में आ जाओ एंड हम आपको ये फ़ायदा दे देंगे. ओके, नो व्हाट सम इंपॉर्टेंट पीपल वर देयर, जिसमें से कुछ का नाम आपने अभी सुना होगा, जैसे जगत सेठ का नाम सुना था. सो ही वॉज द बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल. सो ऑफकोर्स एनीबडी हु इज़ हेल्पिंग इन द फाइनेंशियल मैटर्स वॉज ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस टू these people. Then Khadim Khan, who was a troop commander. Then Amir Chand, who was a very rich merchant. Manik Chand, officer in charge of Calcutta. And Mir Zafar. अब यहाँ पर मीर बख्शी, मतलब इनका जो मीर जाफ़र वॉज अ नेम बट मीर बख्शी वॉज अ पोस्ट, वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नवाब. तो इसीलिए मीर जाफ़र वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज ही वॉज लीडिंग द आर्मी एंड द ब्रिटिश, you know, with the help of Robert Clive, tried to, you know, woo these all people and try to have this web of intrigue, धोखाधड़ी का जाल बुनना with all of these leaders in the Nawab's court. और मीर जाफ़र को लालच दिया गया कि तुम इन सबको हमारे साथ में रखो, सब साथ में काम करेंगे एंड नवाब को रिप्लेस करके we will make you as the Nawab. And everybody would want to become the Nawab, so it was pretty obvious that they would have agreed. So even they joined hands with British कि सिराजुद्दौला को हटाओ, बाहर निकाल के फेंको, ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस वेब ऑफ इंट्रीग और दिस कॉन्स्पिरेसी वाज कॉल्ड एज प्लासी कॉन्स्पिरेसी. अब आया बैटल का टाइम. तो कैसे हटा के फेंकेंगे, तो इन्होंने कहा भाई बैटल करते हैं, बैटल में धोखा देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों साइड की जो आर्मी थी ना, इन द इंग्लिश साइड इंग्लिश आर्मी वॉज देयर एंड नवाब के साइड से ये लोग थे प्रेजेंट, बट ये धोखाधड़ी में थे. तो प्लासी में विच इज़ 30 किलोमीटर साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद इन द बंगाल रीजन, ये जो जगह है यहाँ पे बोथ इंग्लिश एंड दी नवाब की आर्मी दे मेट. यहाँ पे व्हाट हैपेंड व्हेन दे मेट ऑन 23 of June 1757, मीर जाफ़र, बिकॉज इसको तो धोखा देना था, मीर जाफ़र हैड टू यू नो लाइक चीट ऑन दी नवाब बिकॉज ही वॉज गिवन दैट लुक्रेटिव ऑफर कि हम आपको नवाब बना देंगे बाय द ब्रिटिश. तो ही एडवाइज द नवाब कि आप एक काम करो, you should retire from the battlefields. Why? Because some important, some honest, like you know, real important honest people from नवाब आर्मी एक एक करके ख़त्म हो गए थे, एलिमिनेट कर दिए गए थे, मार दिए गए थे. तो मीर जाफ़र ने बोला नवाब को that this is a very riskier situation, you don't go ahead in the war, you do one thing, you retire from the battlefield. आप अलग से कहीं चले जाओ and we will take care of that. अब because ही वॉज आस्किंग कि जो कमांड है आप बाकी जनरल्स के हाथ में दे दो. नवाब को भी लगा बिकॉज नवाब वॉज नॉट नोइंग दैट दे आर चीटिंग ऑन हिम, सो ही वॉज लाइक कि ओके यू नो दिस इज़ लाइक मेरा फ़ायदा ही हो रहा है एंड आई वुड बी सेफ. सो नवाब फ्लेड, भाग गया वहाँ से, और भाग गया तो इनको तो मौका चाहिए था उसको कैप्चर करने का. दे कैप्चर्ड इट और उसको मार दिया गया. सो ही वॉज असैसिनेटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ सन ऑफ मीर जाफ़र. इसको नवाब बैटल फील्ड से हटवा के, झूठ बोलकर हटवा कर उसको बाद में मार दिया गया, ठीक है. नाउ द नवाब वॉज नॉट लेफ्ट, तो हु वॉज लेफ्ट, मीर जाफ़र. अब इसका जो काम था वो हो गया. सो जाहिर सी बात है द ब्रिटिश गॉट व्हाट दे वांटेड
to have their puppet on the throne of Bengal, and now they knew that they could rule Bengal as and when they wanted to, however they wanted to. और मीर जाफर को भी एक गद्दी मिलनी थी, वो मिल गई नवाब ऑफ बंगाल की. Now ये तो happened on the day of the battle. Now what is the consequence? अब हमें तो कहानी enjoy करने के लिए नहीं पढ़नी है ना, we have to answer the questions. So what was the consequence of this battle or result of this battle? Of course मीर जाफर को जो लालच दिया गया था वो ब्रिटिश ने पूरा किया. He was proclaimed as the Nawab of Bengal because earlier Robert Clive had promised this. Robert Clive now became the governor of Bengal. East India Company got undisputed free trading right in the Bengal, Bihar and Odisha region. तो उस टाइम पे देखिए क्या होता था, the present day boundary that you see for the states today of course was not existing then. तो जो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब नेबरिंग रीजन्स हैं, ये पूरा कंबाइंड होके उस टाइम पे बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था. तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट हाउ ह्यूज वाज द बंगाल प्रोविंस. So in the entire modern history, whenever we say Bengal region, you will have to understand कि we are not talking about only the present day Bengal state. We are talking about this whole huge region of Bengal, Bihar and Odisha. Now इन सब के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का. सो कोई इशू ही नहीं था, देयर वाज नो क्वेश्चन, नो डिस्प्यूट, एंड दे जस्ट गॉट द फ्री ट्रेडिंग राइट. कोई ट्रेड पे कोई टैक्स ही नहीं लगाना, आराम से ट्रेड करते रहो, बंगाल को लूटते रहो. ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑल्सो नाउ नीडेड नॉट टू पे एनी टैक्सेस ऑन द प्राइवेट ट्रेड. अब अगर प्राइवेट भी करना है, कंपनी को तो जो मिल रहा है मिल ही रहा है, बट प्राइवेट भी करना है करो, कोई बोलने वाला ही नहीं है. ऑफकोर्स मीर जाफ़र को बोला ये भी गया था कि हम आपको गद्दी देंगे, आप हमको बदले में क्या दोगे? ब्राइब. घूस जो है वो हमेशा गिफ्ट के नाम पे, गिफ्ट और ब्राइब हमेशा देते रहता था बीच बीच में, टू रिमेन एज द नवाब ऑफ बंगाल. और जो भी फ्रेंच सेटलमेंट्स थे बंगाल के वो भी अब सरेंडर कर दिए गए, क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल इन द बंगाल रीजन वाज ऑन द ब्रिटिश ओनली. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल ऑफ पलासी. बट दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब रिजल्ट. वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बैटल? उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन द होल हिस्ट्री? बिकॉज इट जस्ट प्रूव टू बी अ गेम चेंजर. अभी तक तो ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू एलिमिनेट द एक्सटर्नल पावर्स, बट नाउ दे आर एलिमिनेटिंग द इंटरनल पावर्स ऑल्सो एंड स्टार्टेड टू कैप्चर दोज रीजन्स. सो फर्स्टली वन सिग्निफिकेंस वॉज कि वी विल नॉट से दैट द ब्रिटिश वन हियर बिकॉज ऑफ एनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी. ये तो इन्होंने दिखाया ही नहीं. बिकॉज दे वन हियर बिकॉज ऑफ द ट्रैकरी ऑफ पीपल. ये तो लोगों के धोखा देने की वजह से जीते हैं, जो हम समझ पाएंगे. एंड द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द किंग मेकर्स इन बंगाल नाउ, बिकॉज अब तो ब्रिटिश ही राजा बना रहे हैं ना. मीर जाफ़र तो इन्हीं के कहने पे नवाब बना, इन्हीं का आदमी बन गया. ऑल्सो देयर वाज ट्रांसफॉर्मेशन इन द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इसकी सुप्रीमेसी अलग ही हो गई, इसको मोनोपोली मिल गया ओवर बंगाल ट्रेड. उस टाइम पे जो भी थोड़े बहुत फ्रेंच डच पावर का जो भी होने का चांसेस होता वो भी ख़त्म हो गया. रोल ऑलरेडी इनका पॉलिटी में बढ़ता चला गया, बिकॉज नाउ देयर वाज पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ऑल्सो. And the British got hold of the vast resources of Bengal, so they could have used it in any way they wanted to. So all of these things led to the beginning of British conquest of Bengal, and they started it in, I mean, for India, they started the Bengal conquest. Then what happened after Battle of Plassey? Not as a result of Plassey. Plassey हो गया, उसका जो result था वो भी हो गया. But what next? What happened further? अब मीर जाफ़र was already continuing as the Nawab, but then he faced certain problems after some time. What kind of problems? Firstly, many people did not accept him as the ruler. They were not ready to accept him. वो तो ब्रिटिश की मर्जी से he was made the ruler, but many people were not agreeing with that. Also, he was very much suspecting the loyalty of the soldiers. He had no, that trust or faith on the soldiers. Also, there was dependence on the company for the military support. So कोई भी military support चाहिए तो उसको कंपनी से हेल्प लेना पड़ता था. तो जाफ़र के पास अब बस वो नाम के लिए ही वॉज ऑन द सीट, नवाब सीट. अदरवाइज एवरी अदर पावर वॉज जस्ट इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज दे वर द किंग मेकर्स. यही तो हमने देखा, दे वर द किंग मेकर्स. उनके हिसाब से सब कुछ हो रहा था. सो जाफ़र ऑल्सो साइडेड विद द डच. थोड़े वक्त के लिए जो डच जो हैं उस टाइम पर थे, ओवरलैपिंग पीरियड जो है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस, बिकॉज हमने जो इनिशियल टाइम्स देखे वो एक ओवरऑल टाइम देखी, ठीक है. अभी हम क्या करें, इंडिविजुअल जो उस मोमेंट पर चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग यू वुड गेट. तो अब जैसे कि फ्रांस वाज ऑल्सो देयर ना, क्योंकि थर्ड कार्नाटिक वॉर तो 1757 ऑनवर्ड्स ही हुआ है. हिस्ट्री में हम टॉपिक वाइज, थीम वाइज कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट क्रोनोलॉजी जोन, बट मोस्टली इट इज़ थीम वाइज, एंड ओवरलैपिंग क्रोनोलॉजी तो रहेगा ही हर पीरियड में, ठीक है. सो दे ऑल्सो ट्राई टू साइडेड विद द डच अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश ऑफकोर्स गॉट वेरी एंग्री दैट हाउ यू आर हैविंग दैट कॉन्स्पिरेसी विद अनदर राइवल पावर.
ब्रिटिश वॉज वेरी सस्पिशियस ऑफ जफ़र बिकॉज ऑफ दिस नेचर एंड दे जस्ट वॉन्टेड कि इस मीर जफ़र को या जाफ़र को आप जो भी बोलोगे रिप्लेस करो. नाउ ही इज़ नॉट ऑफ आर यूज टू यू. Also in the further times to come that he had to pay the gift and the bribe earlier, now he was not able to pay the East India Company. So East India Company now decided to make another person as the Nawab. तो उन्होंने क्या किया, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र हु वाज मीर कासिम, उसको राजा बनाने की बात की. Now initially उसको जब राजा बना दिया तो he had very good terms with the East India Company, but he was a very ambitious ruler. Very important, I mean effectively and efficiently wanted to work, an ambitious ruler, and he was not willing to work against his principles and work just as a puppet of the British. So later he started to have issues with the British, and because he was an able and efficient ruler, he also wanted freedom from the foreign control. He said कि भाई मेरा रीजन है बंगाल का, हमारा रीजन है बंगाल का, why would this British East India Company taking control over it? तो इन्होंने इसको हटाने की कोशिश की and had put certain demands with the British. Now the British did not agree to those demands. तो अब क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो अभी का प्रेजेंट नवाब है और इंग्लिश के बीच में there will be लड़ाई, there will be war, and the war happened between them in 1763 in which the Nawab got defeated because at the end of the day British was still supreme. ठीक है, तो ये नवाब मीर कासिम got defeated. अब क्या हुआ, when कासिम got defeated he fled, वो भाग गया. भाग के कहाँ गया, नियर बाई रीजन में अवध, जो आपका यूपी, आज का यूपी का रीजन है, वहाँ गया. एंड ही फॉर्म्ड अलायंस विद शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू. हु वाज शुजाउद्दौला? ही वाज द नवाब ऑफ अवध बिकॉज देयर वर दीज रीजनल पावर्स, नो, बंगाल, हैदराबाद, अवध, इफ यू रिमेंबर. एंड शाह आलम टू वाज द मुगल एम्परर. So he just tried to form this alliance with them that this external power is ruling over us, so let's have this connection together. अवध के राजा से, मुगल एम्परर से, भले वो नाम मात्र के लिए मुगल था बट ठीक है, था तो उसी लेगेसी में. एंड देन दिस बंगाल नवाब. सो नाउ दीज थ्री पीपल ऑन वन साइड. हु थ्री पीपल? मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध, एंड शाह आलम टू द मुगल एम्परर. ये थ्री पीपल ऑन वन साइड एंड ब्रिटिश ऑन द अदर साइड. They had this battle, the second major battle which just changed everything in the case of history. That was Battle of Buxar 1764. And what was the immediate cause for this? Misuse of the dastaks. जो हमने बात की थी ना, passes या permits की, ड्यूटी फ्री ट्रेड, वही बात है. प्राइवेट ट्रेड के लिए ये लोग उसको मिसयूज़ कर रहे थे. और ये तो यहाँ से हार के वैसे भी भाग गया था, तो उसने अलायंस बना लिया. तो यू हैड दिस अलायंस इन तीनों का वर्सेस द ब्रिटिश आर्मी. तो ये दोनों आपस में खड़े हुए और बक्सर में, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में आता है, बट उस टाइम पे बिकॉज बिहार, बंगाल एंड ओडिशा वर द सेम कंबाइंड रीजन ऑफ द बंगाल प्रोविंस, हम इसीलिए इसको बंगाल में काउंट करते हैं उस टाइम पर. सो अक्टूबर 22, 1764, ठीक है, दे मेट इन बक्सर. और जो वहाँ लड़ाई हुई उसमें द ब्रिटिश आर्मी गॉट विक्टोरियस. तो ये तीनों हार गए बिकॉज दे वर फॉर्मिंग द अलायंस एंड दे जस्ट गॉट डिफीटेड. सो ब्रिटिश आर्मी गॉट विक्टोरियस. And therefore this proved to be a decisive battle. इसने सब कुछ बदल दिया इंडियन हिस्ट्री के कोर्स में because this established British as the masters of the Bengal, Bihar and Odisha region. और अवध को अपनी मर्जी के अंदर रख लिया, मतलब अब अपने कंट्रोल में रखेंगे. बेचारे टाइप हो गए अवध की सिचुएशन यहाँ पर. तो बंगाल कब्जे में आ गया, अवध कब्जे में आ गया, मुगल एम्पायर का तो वैसे ही कुछ मतलब नहीं बचा था. So what is the significance of this battle of Buxar? That the British proved to be the supreme power. The Nawabs just became a puppet in the hand, कठपुतली की तरह बन गए. मुगल एम्परर जो है उसको एक बस पेंशनर बना दिया कि हमारे पेंशन पे काम चलेगा. एंड देयरफॉर नाउ द ब्रिटिश बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पावर इन नदर्न इंडिया. बंगाल से इन्होंने शुरू किया और नदर्न इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट पावर की तरह स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना बना लिया. क्विकली सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. फर्स्टली द पावर गॉट ट्रांसफर्ड इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल. मीर जाफ़र को इन्होंने, अच्छा मीर कासिम ने तो यहाँ सारा गड़बड़ कर दिया था, तो दे थॉट कि वापस से मीर जाफ़र को ही मौका दे देते हैं जिसको पहले दिया था. ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि मीर जाफ़र के साथ दे वर नाउ वेरी स्ट्रिक्ट दैट यू डोंट डेयर टू हैव एनी ट्रैकरी विसर और डोंट डेयर टू हैव एनी काइंड ऑफ सुप्रीमेसी इन केस ऑफ अस. यू आर जस्ट आर पपेट एंड रिमेन लाइक दैट. सो ही वॉज अगेन गिवन बैक द थ्रोन ऑफ बंगाल बट ऑफकोर्स ऑन हार्शर टर्म. एंड आफ्टर हिज डेथ उसका एक छोटा बच्चा, माइनर सन मतलब बिल्कुल ही छोटा बच्चा, जिसको नवाब बना दिया गया.
तो अब तो क्या है, नाउ दिस माइनर सन, छोटा बच्चा विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ बंगाल एनीवे, तो एवरीथिंग वाज नाउ इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश. ये तो बस नाम के लिए एक राजा था, बट रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. रॉबर्ट क्लाइव अगेन बिकेम द गवर्नर एंड ऑल्सो बिकेम कमांडर इन चीफ, मतलब आर्मी हेड करने के लिए. सेकेंड टेन्योर में भी, फर्स्ट टेन्योर में तो पहले बना ही था, सेकेंड टेन्योर में भी बन गया. नाउ सर्टेन ट्रीटीज वर साइन. फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये किसके बीच में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ अवध के बीच में. बिकॉज बंगाल के तो रीजन में दे हैड टेकन ओवर दिस रीजन एंड नवाब अब इनका अपना ही आदमी हो गया. बट अवध और मुगल एम्पायर के साथ भी तो कुछ ट्रीटी साइन होगी ना, बिकॉज दे वर अलायंस एंड ऑल ऑफ देम वर डिफीटेड. सो नवाब ऑफ अवध के साथ भी फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया एंड द नवाब ऑफ अवध हैड टू पे वॉर कंपेंसेशन, कि जो भी खर्च हुआ है वो निकालो, सरेंडर सम एरियाज ऑफ द रीजन एंड एंटर इनटू सब्सिडियरी अलायंस. Now what was the subsidiary alliance? We will do when the topic comes. अभी के लिए you will just understand कि subsidiary बना लिया गया, alliance sign किया गया to make them their subsidiary, that you will be under us. Just for the timing know this and we will do it in detail. And East India Company बदले में क्या करेगी? It said that if you are doing all of these things for us, we will protect the Nawab against any kind of outside attack. ठीक है, ये एक provision था subsidiary alliance का. Now with the Mughal Emperor what happened? Second Treaty of Allahabad was signed. तो मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ ये साइन किया गया और मुगल एम्परर को बोला गया दैट वी विल गिव यू ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन, यू डोंट वरी. बट एवरीथिंग दे चेंज्ड फ्रॉम हियर. यू गिव अस समथिंग एंड व्हाट वाज दैट समथिंग? यू गिव अस द दीवानी राइट्स टू collect the East India Company, collect revenue for the East India Company over this region. Basically दीवानी rights मतलब the right to collect revenue. So they asked Mughal Emperor to grant this दीवानी right or right to collect revenue to the East India Company, क्योंकि वो power collection of revenue का मुगल एम्परर के ही हाथ में था, even though politically the Nawab of Bengal was taking charge. लेकिन अब ये पूरा फॉर्मली दीवानी राइट्स इन्होंने अपने हाथ में ले लिया ओवर द एंटायर बंगाल रीजन. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द होल बंगाल रीजन वाज नॉट ओनली पॉलिटिकली अंडर देयर कंट्रोल बिकॉज नवाब इनका था, बट ऑल्सो इकोनॉमिकली अंडर देयर कंट्रोल बिकॉज दे गॉट द दीवानी राइट्स, द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. देन द माइनर सन और नवाब ऑफ जो बंगाल था उसको भी, उससे भी फॉर्मली, अब वो छोटा बच्चा कोई क्या करेगा उसमें, तो हैड टू सरेंडर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी. कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मेजर जो चीज़ें हैं डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स अब वो खुद हैंडल करेगी. और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो बच रहा था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ही नॉमिनेटेड पर्सन के हाथ में दे दिया. सो देयर ओन पर्सन वाज हैंडलिंग सिविल ऑल्सो, डिफेंस ऑल्सो, फॉरेन अफेयर्स, विच मीन्स, और यहाँ से पैसा तो आ ही रहा है, विच मीन्स एवरीथिंग, अगर आप लॉजिकली देखते हो, ऑफ बंगाल वेंट इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश. So all the real powers in Bengal went into the hand of English East India Company. And there was the formation of dual or double government, जिसको डायरकी भी बोलते हैं in Bengal. But just for theory, ठीक है, just on paper you would say, or just formally, that East India Company has got the Diwani right. वो तो इनको formally मिल ही गया है from the Mughal Emperor, so revenue का. But the Nawab will take care of law, order, administration, defense, जिसके लिए निज़ामत term use होता था. बट द पॉइंट इज कि नवाब को तो दे हैड आस्क्ड फोर्सिबली टू सरेंडर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इवन टेक्निकली इट सीम्स दैट देयर वर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बट रियल पावर वाज ऑल इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो. सो रियल पावर में ईस्ट इंडिया कंपनी ही का था, नवाब के पास बस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ठीक है, ब्रिटिश हैड नो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी हैड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर सब कुछ इनके हाथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं. एंड नवाब हैड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर कुछ भी नहीं. तो प्रॉब्लम क्या हुई? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? फर्स्टली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एनीवेज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ द पीपल. दे हैव गॉट एवरीथिंग दैट दे वांटेड, सो इट वाज जस्ट फॉर देयर ओन वेलफेयर. नवाब वाज नाउ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द पीपल. वाई विल द नवाब बी? बिकॉज इसके पास तो नाम की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर तो कुछ है ही नहीं, और इसका काम तो चल ही जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से. सो फॉर द पीपल nobody cared, neither the company cared nor the Nawab cared, which resulted in so much of drain of wealth from Bengal. पैसा बिल्कुल निकलता चला गया. अब इसी पैसे से they used to purchase the goods, ठीक है, and they were sending it abroad.
सो द गुड्स वर परचेज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ बंगाल ओनली. यहीं के लोकल पैसे से बाहर बेचते थे और उसको यूज़ करते थे, और यहाँ के लोगों के लिए नो पैसा वॉज लेफ्ट. एंड ऑल्सो देयर वाज बंगाल फेमीन, अकाल भी आया उसी बीच में, रेन फेल्योर भी हुआ. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बंगाल का कंडीशन जस्ट बिकेम वेरी वेरी सच अ फ्लरिशिंग रीजन इट वॉज, बट बिकॉज ऑफ दीज मैनी फैक्टर्स इट जस्ट वॉज in a very very terrible state because of the British. So this was all about the Battle of Plassey and Battle of Buxar. Now in the next video I'll continue the story from here. I hope you have now understood how the Carnatic Wars helped eliminate the French and how these Battle of Plassey and Buxar helped the British take over the entire Bengal region and started to have the control over India starting from the Bengal region. So see you guys in the next video. Please do leave your comments in the comment section so that I know if you are even understanding and liking these sessions or not. Thank you so much. Take care. Bye bye.